علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ساری حمد و ثنا اس کے لیے ہے جس نے اپنی حکمت سے اس جہان کو خلق کیا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے بہرائچ اتر پردیش میں واقع حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے میں منعقدہ 1019ویں عرس کی رسومات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس عرس میں ہندوستان کے مختلف شہروں سے اہل سلاسل سے وابستہ حضرات کے ساتھ دانشور، صوفی اور خانقاہی نظام سے وابستہ اشخاص نے شرکت کی۔ عرس کی رسومات کی ادائیگی کے دوران کووڈ گائیڈ لائنز اور سماجی دوری کا خاص خیال رکھا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں عرس سے حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ پر مبنی ہماری یہ خاص پیشکش۔ صدا نازم بجا نازم، صدا نازم بجا نازم، گدائے کوئے جانا نازم، نیوز 18 اردو کے ناظرین، آج جس بزرگ کے آستانے کے زیارت کریں گے وہ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ اتر پردیش کے تاریخی شہر بہرائچ شریف میں مرجع خلائق ہے۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ نے جس عہد میں اس سرزمین کو، جسے بہرائچ کے نام سے جانا جاتا ہے، اپنی ریاضت کا مرکز بنایا، اس عہد میں یہ خطہ سیاسی، سماجی، مذہبی اور ثقافتی مرکز تھا۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اخلاق حسنہ سے خلق اللہ میں اسلامی تعلیمات کی نہ صرف آبیاری کی بلکہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ پیغام دیا کہ انسانیت کی خدمت اور انسان سے محبت در حقیقت اللہ کے قرب کا ایک اہم راستہ ہے۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس سبھی قوم کے لوگوں میں یکساں مقبول ہے۔ یہ سید سالار مسعود غازی کی درگاہ ہے۔ یہ ایک عظیم درگاہ ہے، ہندوستان کی سب سے پرانی درگاہوں میں سے ہے، اور یہاں پر ہر مذہب، ملت، بنا تفریق کے لوگ یہاں آتے ہیں، اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں۔ درگاہ کمیٹی ہماری 13 رکنی کمیٹی ہے۔ ہمارے بغل میں نائب صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بقاءاللہ صاحب، تو ہم لوگ مل کے اپنا اس کا انتظام کافی پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ زائرینوں کے رہنے کے لیے، زائرینوں کے کھانے پانے کا ارینجمنٹ، یہاں لنگر چل رہا ہے، 6 دن سے لنگر برابر چل رہے ہیں، اور سال میں 3 میلے ہمارے ہوتے ہیں۔ بسنت کے ٹائم میں 3 دن کا میلہ ہوتا ہے، یہ عرس کا 6 دن کا ہوتا ہے۔ یہاں سے پہلے لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں، وہاں سے لوٹ کے پھر یہاں حاضری دیتے ہیں، یا کچھ لوگ ہندوستان کے لوگ یہاں حاضری دے کے تب جاتے ہیں۔ یہاں سے اور اجمیر شریف کا ایک سلسلہ بنا ہوا ہے، رشتہ بنا رہتا ہے۔ تو آج کی تعداد میں ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ آئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھا ہیں۔ کووڈ کا بھی دھیان دیتے ہوئے لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ماسک لگا کے رہیں اور دوری بنا کے رہیں۔ پولیس پرشاسن کا بھی سہیوگ مل رہا ہے، ضلع پرشاسن کا بھی مل رہا ہے۔ کورونا کی وجہ سے جو لوگ وہی مختصر لوگ آئے ہوئے ہیں، پھر بھی کافی لوگ آ چکے ہیں، ان کا دھیان دیا جا رہا ہے، اور اس پر جو بھی گائیڈ لائن ہے اس کا پالن کیا جا رہا ہے، اور سب کی صفائی لیے، سب کی لیے سینیٹائزر ہمارے لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور ماسک کا اعلان ہو رہا ہے، لوگ ماسک لگا کے رہیں اور اپنی حاضری دیں اور اپنے گھروں کو واپس جائیں۔ مشرقی اتر پردیش میں آج بھی حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس اور بارات صدیوں پرانی قدیم روایت کے مطابق منایا جاتا ہے۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی مذہبی اور روحانی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ آستانِ عالیہ پر ہمہ وقت تہذیبوں کا سنگم دکھائی دیتا ہے، اور یہاں آنے والے زائرین کا ماننا ہے کہ جس نے اس آستانے پر اپنی پوری عقیدت کے ساتھ حاضری دی وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا۔ یہ دیار غازی ہے، یہاں لوگ محبت سے آتے ہیں، محبت سے پیش ہوتے ہیں۔ کافی مجمع آیا تھا، کافی لوگ ہوئے، کل شریف میں شریک ہوئے، اور دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ درگاہ انتظامیہ کی طرف پوری کوشش کی جاتی ہے، اتنے مجمع کو کنٹرول کرنا معمولی بات نہیں ہے۔
मगर ज़ायरीनों से यही है कि अगले साल जब आए तो अपना भी इंतज़ाम करके आए। हाँ, दरगाह की तरफ से जो भी बेहतर इंतज़ाम होगा किया जाएगा, अपनी तरफ से भी सहूलत करके आए लोग, और रहने के लिए कोई दिक्कत यहाँ नहीं रहेगी। जिस तरीके से हज़रत सैयद सलार मसूद आस्ताना जो हमारा है, जिसके हम रुकन हैं, उसकी तरफ से तमाम फलाही काम और बहुत बहुत फलाही काम अंजाम दिए जा रहे हैं। और ख़ास तौर से हमारा फोकस इस बात पर रहता है कि जो हम इमदाद करते हैं, जो हम मदद करते हैं, जो हम लोगों के दिलों दिमाग में अपनी एक मखसूस छाप पेश करते हैं, उसकी वजह यही है कि हम न नाम पूछते हैं, न मजहब पूछते हैं, न मसलक पूछते हैं, और इंसानियत की बुनियाद पर हम उनकी खिदमत करते हैं। आप जो लाखों का मजमा हमारा देख रहे हैं, गाइडलाइन के अनुसार हम काम कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी जो कुछ भी हमसे हो सकता है, 3 दिन से हमारा लंगर 3-4 दिन से बराबर चल रहा है, हमने न नाम पूछा, न उससे पता पूछा, न मसलक पूछा, न मजहब पूछा, और इंसानी के नाते यहाँ से हमने उसकी मदद यहाँ से की। और हमेशा हम ये इस बात को करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इत्तेहाद और इत्तफाक और मोहब्बत और तमाम नफरतों का जवाब हमारे पास सिर्फ मोहब्बत है, और हम मोहब्बत से ही देते हैं। और इसी की ये बरकत है, साहिब आस्ताना की बरकत है, तमाम लोगों की दुआएं हैं ये कि आज ये आस्ताना दिन पे दिन तरक्की की तरफ गामजन होता जा रहा है। आमतौर पर बुजुर्गान दीन के आस्थानों पर सिर्फ उर्स का एहतमाम होता है, लेकिन हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के आस्तान आलिया पर उर्स के अलावा जश्न विलादत, बसंत और जेठ मेले का भी इनेकाद होता है। यहाँ का मेला अवाम में बाले मियाँ के मेले के नाम से मशहूर है। गोया बहराइच में हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स यहाँ के अवाम के लिए सालाना त्यौहार का दर्जा रखता है। कहीं शहर में ऐसा कोई मैखाना मिले, कहीं शहर में ऐसा कोई मैखाना मिले, मैं से लबरेज जहाँ रिंद को पैमाना मिले। तेरे दर की जियारत नसीब सबको कहाँ, तेरे दर की जियारत नसीब सबको कहाँ। वो खुश नसीब है जिसको ये आस्ताना मिले, वो खुश नसीब है जिसको ये आस्ताना मिले। बहराइच के नाम से मशहूर ये तारीखी शहर मुश्तरका तहजीब का अमीन है। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात काबिल कद्र और फिक्र अंगेज हैं। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने आलिया पर आम लोग तो क्या, सलातीन वक्त भी हाजिरी देकर मुरादे मांगते थे। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लामी तालीमात की रोशनी में इंसानियत की खिदमत का अजीम कारनामा अंजाम दिया। यही वजह है कि आस्ताने आलिया पर तमाम मज़ाहिब के लोगों का एक हुजूम दिखाई देता है। जो हमारे सूफिया कराम, जो हमारे बुजुर्गान दीन जो भी हम लोगों को सिखा कर गए हैं, यकीनी तौर पर इतने अच्छे उसूल और इतने अच्छे तौर तरीके बता कर गए हैं कि अगर उस पर अपनी जिंदगी को अमली जामा पहना दिया जाए तो हम यकीनी तौर पर एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। और सबसे पहली चीज ये है कि एक अच्छा इंसान अगर बन जाएगा तो वो मुल्क की खिदमत भी कर लेगा, अपने परिवार, अपने समाज, अपनी सोसाइटी की भी खिदमत कर लेगा। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताने आलिया उत्तर प्रदेश के सोफिया में सबसे कदीम आस्ताना है। कौमी यकजहती के इस बड़े मरकज में अवाम को हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात से जोड़ने और बहराइच के अवाम में तालीमी बेदारी पैदा करने की गरज से दरगाह इंतजामिया कमेटी ने बहुत से फलाही काम शुरू किए हैं। दरगाह कमेटी के ज़रिए इंतज़ाम स्कूल और मदारिस का भी क़याम अमल में आया है। लड़कों की तालीम के साथ दरगाह इंतज़ामिया कमेटी ने तालीम निस्वां के लिए भी कदम उठाए हैं। इसके लिए भी बेहतरीन इमारत तामीर की गई हैं। इसी के साथ ज़ायरीन के क़याम के लिए भी बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं। हमारी कमेटी ने यहाँ का इंतज़ाम संभाला था, तो यहाँ से शहर 2 किलोमीटर की दूरी पर है। लड़कियाँ यहाँ, ये काफ़ी पिछड़ा एरिया है, लड़कियां पढ़ना चाहती है, उनके पढ़ने की कोई यहाँ पे इंतजाम नहीं था, तो कमेटी ने हमारा इंटर कॉलेज बनाया, यूपी बोर्ड से मान्यता भी मिल गई है, और 1000 के ऊपर की लड़कियां यहाँ पढ़ रही है, तालीम हासिल कर रही है। मुख्तसर से फीस पर उनकी तालीम दी जा रही है। और लोगों को, जो भी गरीब लोग हैं, जैसे रजाइया वगैरह दरगाह शरीफ से बांटी जाती है, जो भी शादी ब्याह का इंतजाम होता है गरीब लोगों का, दरगाह की तरफ से, दरगाह कमेटी की तरफ से उनको मदद की जाती है। और फलाही काम में काफ़ी यहाँ से दरगाह से पूरे साल सिलसिला लगा रहता है। दरगाह कमेटी ने पिछले 10 सालों में काफ़ी काम किया है, और लोगों की मदद करने के लिए अपना हमारे 9 स्कूल चल रहे हैं, एक हॉस्पिटल चल रहा है, हॉस्पिटल में फ्री दवाएं दी जा रही हैं दरगाह की तरफ से,
मैरिज हॉल भी खुलवाया गया है। लोगों के वही शादी ब्याह के लिए कम दामों पे उनकी मदद की जा रही है। अभी 2019 में ऑल इंडिया वही भारत सरकार ने ऑल इंडिया वक्फ काउंसिल की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें दरगाह शरीफ को सेकंड नंबर दिया गया था, इनाम से नवाजा गया है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि दरगाह का नाम वही भारत सरकार के उसमें लिस्ट में भी गया है। और सभी से उम्मीद है कि सब लोग दरगाह शरीफ की तरफ से तवज्जो करें, मदद करें। जो भी दरगाह शरीफ होगा, हम लोग की कमेटी का एक खास मकसद अब रह गया है कि एक हॉस्पिटल, एक मेडिकल कॉलेज खोलने का, जिस पर कमेटी उस पर गौर कर रही है और कमेटी उस पर आगे काम कर रही है कि ताकि कुछ 100 सीट का मेडिकल कॉलेज खोला जाए, तो बच्चे यहाँ पे पढ़ें और यहाँ से फारिग होकर अपने अपने एरिया में जाएं और दरगाह का एक नाम रोशन हो। शमशाद साहब ने और हमारी इंतजामिया कमेटी ने 10 सालों से जो दरगाह में सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के इस कैंपस में जो काम कराए हैं, वो पूरा शहर इसको जानता है, पूरा जिला जानता है। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि आगे भी हम लोग, जो शमशाद साहब ने कहा कि मेडिकल कॉलेज और बड़े कॉलेज खोले जाएं, हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि इस शहर में दरगाह कमेटी की तरफ से और दरगाह सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर ये इदारे कायम किए जाएं। तालीम के सिलसिले में हमने लोगों ने काफ़ी काम कर लिया है। गर्ल्स इंटर कॉलेज है, बच्चों के तालीमी इदारे हैं, और एक लेडीज़ का बच्चियों का और कॉलेज हमने सकैयापुरा में चला रखा है, और तमाम रेनोवेट करा दिया है, बहुत खूबसूरत बना दिया है। और किसी भी पब्लिक स्कूल से कम खूबसूरत नहीं है। अगर हमारी बिल्डिंगों को हमारे टीचर का स्टाफ देखेंगे, उनकी लियाकतें देखेंगे, उनका डिवोशन देखेंगे, तो आपको यकीनन खुशी होगी। हमारे टीचर्स और हमारा स्टाफ के लोग बराबर बच्चियों की निगरानी करते रहते हैं, और उनकी छुट्टी के बाद घर तक फोन करके ही मालूम कर लेते हैं कि वो सही सलामत कायदे से पहुंच गए कि नहीं। यहां तक हम जिम्मेदारी अदा करते हैं। जहां तक तालीम की बात की, ये सही है कि हर चीज हमको मिल सकती है। हुकूमतें, हर दौर की हुकूमतें हमको हर चीज देंगी एक्सेप्ट तालीम, और इस तालीम को हमें खुद हासिल करना है। और अल्लाह कुरान में भी फरमाता है कि तालीम के लिए अगर तुम्हें दूर दराज का सफर करना पड़े, दूर दराज जाना पड़े, तो भी करो और तालीम को हासिल करो, क्योंकि बगैर तालीम के हम इंसान मुकम्मल नहीं है। अगर इंसान मुकम्मल नहीं तो मुसलमान मुकम्मल तो हो ही नहीं सकते। हम खास तौर से तालीम के मामले में जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहराइच गाजी मियाँ की सरजमी के ऊपर इंतजामिया कमेटी की जानिब से बेटियों की तालीम के लिए, तालीम निस्वा के फरोग के लिए एक बहुत बड़े इंटरमीडिएट कॉलेज का कयाम किया गया है। 34 कमरों का जो है इंटरमीडिएट कॉलेज खोला गया है। हुकूमत से जो है उसकी सनद हासिल हो चुकी है, इंटरमीडिएट तक हासिल है। इसी तरह हम लड़कों का एक आज़ाद इंटर कॉलेज के नाम से जो है लड़कों की तालीम के लिए है। यहाँ के ऊपर हाई स्कूल तक जो है बेटियों की तालीम के लिए यहाँ के ऊपर काम हो रहा है। 4 हमारे प्राइमरी स्कूल यहाँ के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है मरीजों की खिदमत के लिए, बीमारों की खिदमत के लिए फ्री उनका इलाज हो सके, 10 बेड का यहाँ के ऊपर हॉस्पिटल बना हुआ है। आम इंसान शादी ब्याह के मौके पर जो लोग लाखों रुपया खर्च करके जा करके जो है कहीं न कहीं के ऊपर खर्च करके अपनी बेटियों का या शादी ब्याह के लिए जो है मैरिज लॉन लेते थे, दरगाह इंतजामिया की जानिब से जो है एक निकाह घर की तामीर की गई है, जो बहुत ही सस्ते में हम उनको जो है खर्च के ऊपर जो है मुहैया कराते हैं कि लोग आसानी के साथ में आकर के जो है शादी ब्याह के जो है काम कर सके। दरगाह इंतजामिया कमेटी ने गुज़िश्ता दिनों जो है अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब से, जिनसे दरगाह इंतजामिया कमेटी को एक अवार्ड भी हासिल हुआ है पिछले 2 साल पहले, उनसे मुलाकात की थी। दरगाह इंतजामिया कमेटी की ख्वाहिश ये है कि हम यहाँ के ऊपर जो है एक मेडिकल कॉलेज का कयाम कर सकें। BUMS कॉलेज खोलना चाहते हैं, जिससे जो है हमारे घर के जो बच्चे दूर दराज तालीम हासिल करने के लिए यहाँ जाते हैं, उनको यहाँ के ऊपर सहूलियत हो। इसकी जानिब जो है हम लोगों ने कदम बढ़ाया है। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का इंतजाम उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के तहत चलता है। 1958 से दरगाह का इंतजाम वक्फ बोर्ड के तहत जारी है। उत्तर प्रदेश में हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात अक़दस एक आफताब की सी है। आस्ताने आलिया को रोजाना नमाज फज्र के बाद जायरीन के लिए खोल दिया जाता है। दिन भर जायरीन अपनी सहूलियात के मुताबिक दरगाह पर हाजिरी देने आते हैं और आस्ताने आलिया पर अपनी अकीदतों का नजराना पेश करके अपनी मुरादों की झोलियां भरते हैं।
आस्थाने हजरत सैयद सालार मसूद गाजी की जो खिदमात हैं और हजरत सैयद सालार मसूद गाजी की शख्सियत के ऊपर जो रोशनी डाली जा रही है, आज पूरी दुनिया जो है उससे वाकिफ हो रही है। आस्थाने हजरत सैयद सालार मसूद गाजी मोहब्बत और यकजहती का जो है एक नमूना है। यहाँ हर साल लाखों की तादाद में हर मजहब के मानने वाले लोग, इसके अंदर ये कैद नहीं है कि किस मजहब के मानने वालों की तादाद ज्यादा है। यहाँ आप पहचान कर पाना मुश्किल होता है कि ये हिंदू है, कि ये मुसलमान है, कि ये सिख है, कि ईसाई है। हिंदुस्तान को सूफी संतों का मुल्क कहा जाता है। सूफिया कराम ने इस्लामी तालीमात की रोशनी में जिस तरह से इंसानी खिदमत का अजीम कारनामा अंजाम दिया है, उसे देखते हुए लोग बिला लिहाज मजहब व मिल्लत सूफिया कराम के आस्थाने पर आकर हाजिरी देते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं। हम यहाँ से पूरे कौम व मिल्लत को एक जहती का पैगाम देना चाहते हैं और ये ऐसी दरगाह है जहाँ बिला मजहब व मिल्लत हर आदमी शिरकत करता है। मोहब्बत का पैगाम तो यहीं से मिलता है, सैयद सालार मकसूद गाजी रहमतुल्लाह के यहाँ समझ लीजिए, जो पैगाम यहाँ से मिलता है वो पैगाम आपको कहीं से नहीं मिलेगा। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के अकीदतमंद सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं। यहाँ के लोगों को इस बात की खुशी है कि वो उसी तारीखी शहर में क़याम करते हैं जहाँ हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताने मुबारक है और आपके आस्ताने के फ़यूज़ व बरक़ात के लिए दुनिया भर से अक़ीदतमंद आकर हाज़िरी देते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के दिन कुल की रस्म अदा की जाती है और दुआओं का एहतमाम किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अल-अतम्मानि अल-अकमलानि अला सय्यिदिना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमाइन। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम, मौला जो भी कुछ पढ़ा गया सुबह से लेकर अभी तक जिसने जो भी कुछ पढ़ा और आदो वज़ाइल तिलावत व क़िराअत ना तो मंतबत किताबत जो भी कुछ मौला खराज अक़ीदत पेश किया गया, मौला हमारे पढ़ने में जैसी भी गलतियां हुई अपने करम से माफ फरमा दे। खास तौर से हुजूर क़ुदवतुस सालिकीन, इमामुल मुजाहिदीन, सुल्तानुल औलिया व शुहदा फिल हिंद सैयदुना सैयद सालार बड़े सरकार साहिब दरबार सैयदुना सैयद सालार मसूद गाजी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारगाह अलविया में अता फरमा, बारगाह गाजिया में अल्लाह अता फरमा, बारगाह गाजिया में सवाब अता फरमा, सरकार की बारगाह में अता फरमा। आपके तमाम आवान अंसार रुफका वजानिसारों को उसका सवाब अता फरमा। ए रब्बे कायनात, ए रब्बे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने इस महबूब करीम बंदे के सदक़े हमारे दिलों की तमाम जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमा दे, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस तरह करम के सदक़े हमारे मुल्क की अमन और शांति की हिफाजत फरमा, पूरी दुनिया में अल्लाह अमन और शांति की हिफाजत फरमा। और या अल्लाह तमाम अहले ईमान को हिदायत इल्ल तक़वा अता फरमा दे। मौला करीम सरकार, मौला कायनात, हम आपके शहजादे के दरबार में हाजिर हैं, इनके सदक़े सरकार हम आपको वसीला बनाते हैं अपनी बारगाह में, सबके हाथ पर नजर करम फरमा दीजिए, सबका भला हो, सबकी खैर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाल अल्लाहु तआला फी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या नबी सल्लल्लाहु या हबीब सलाम अलैका। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप देख रहे हैं और से हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह पर मबनी हमारी ये खास पेशकश। कौमी हम आहंगी और गंगा जमनी तहजीब की अलामत दरगाह हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की इंतजामी कमेटी बफैज़ान गाजी अवामी तकाज़ों को पूरा करने की समत में मुसलसल कोशा नजर आ रही है। इस साल सैयद सालार मसूद गाजी का 1019वां उर्स मनाया गया।
اس عرس میں ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے زائرین شرکت کرنے بہرائچ میں واقع حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضری دینے پہنچے۔ یہ درگاہ ہندوستان کی سب سے قدیم درگاہوں میں سے ایک ہے، جو باہمی اتحاد کا سب سے بڑا مرکز ہے، جہاں ہر قوم کے لوگ ایک ساتھ صاحب آستانہ مزار پر حاضری دیتے ہیں اور اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔ صدا نازم بجا نازم، صدا نازم بجا نازم، گدائے کوئے جانا قومی ہم آہنگی اور گنگا جمنی تہذیب کی علامت درگاہ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ وقف نمبر 19 کی انتظامی کمیٹی بفیضان غازی عوامی تقاضوں کو پورا کرنے کی سمت میں مسلسل کوشاں نظر آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یو پی سنی سینٹرل وقف بورڈ کی مثبت رپورٹ کے بعد مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور جناب مختار عباس نقوی کے بدست دارالحکومت دہلی میں درگاہ انتظامیہ کمیٹی کے صدر سید شمشاد احمد ایڈوکیٹ کو اعزاز دے کر نوازا گیا۔ صرف کاغذوں پر ہی نہیں بلکہ زمینی حقیقت کو بھی بیان کر رہے ہیں درگاہ انتظامیہ کمیٹی کے کارہائے نمایاں، جو اس طرح ہیں۔ درگاہ کے تاریخی قلعے کو مکرانہ کے سرخ پتھروں سے چاہے تاریخی بنانے کا کام ہو یا درگاہ شریف میں واقع قدم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کاری، مسجد قدم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر و توسیع، ملحقہ دکانوں، درگاہ کا اندرون قلعہ و نشان دروازہ، مکی دروازہ، سالار گیسٹ ہاؤس کے ساتھ ساتھ درگاہ کی زمین کا صحیح استعمال کرتے ہوئے نکاح گھر کی شکل میں آمدنی کے ذرائع میں اضافہ کرنا، درگاہ شریف کے تاریخی زنجیری گیٹ سے داخل ہونے کے بعد پھولوں کی خوشبو سے دل کو منور کرتے ہوئے روحانیت سے لبریز کرنے والا باغیچہ آستانہ حضرت چمن تار شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ درگاہ شریف کے اطراف میں رہنے والے غریب و نادار افراد کی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم سے جوڑنے کے مقصد سے مسعود غازی گرلز انٹر کالج کا قیام، مکتب مسعودیہ قاضی پورہ بہرائچ کی تعمیر نو، مسعودیہ نسواں گرلز اسکول شیخیا پورہ بہرائچ کی تعمیر و توسیع، تاریخ سے روشناس کرانے کے لیے سالار لائبریری کا قیام کے علاوہ آزاد انٹر کالج و ملحقہ دکانوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ کالج کے منظمہ کو پختہ کرنا، نیز تعلیمی نظام کو برقرار رکھنے کی غرض سے دوران کووڈ زیر انتظام درگاہ چلنے والے اداروں کے اساتذہ کو مسلسل تنخواہیں دینا، دوران کووڈ غربا میں اناج تقسیم کرنا، موسم سرما میں غریب و نادار افراد میں رضائی تقسیم کرنا، مذکورہ کارہائے نمایاں کے علاوہ عرس رجب کی 5 روزہ تقریب کے دوران بزرگوں کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے لنگر عام کا اہتمام کرنا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مقرب بندے خصوصاً اولاد علی جس جگہ دین حق کی بقا، مظلوم کی حمایت، مایوسوں کی رہنمائی، ظلم کے خاتمے کے لیے جام شہادت نوش فرما کر شمع ہدایت روشن کرتے ہیں، وہ مقام صدیاں گزرنے کے بعد بھی روحانیت کے پیکر میں ڈھلا ہوا لوگوں کے قلوب کو متوجہ و منور کرتا ہوا نظر آتا رہے گا، جس کی جیتی جاگتی ہوئی مثال فرزند شیر خدا سلطان الشہداء حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف بہرائچ میں ہے۔ اب صاحب آستانہ جس سے چاہیں خدمت لیں اور جس کو چاہیں نواز دیں، یہ ان کے کرم کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ انتظامیہ کمیٹی سے پہلے درگاہ کے مختلف ایڈمنسٹریٹرز ہوئے، لیکن درگاہ کی آمدنی سے وہ تاریخی کارہائے نمایاں نہیں انجام دے سکی جو سید شمشاد کی قیادت میں موجودہ انتظامیہ کمیٹی مخالف ہواؤں کا رخ موڑتے ہوئے انجام دے رہی ہے۔ حادثے دل پذیر دیکھے ہیں، مرد روشن ضمیر دیکھے ہیں، جن کے قدموں میں بادشاہت ہے، میں نے ایسے فقیر دیکھے ہیں۔ صدا نازم بجا نازم، صدا نازم بجا نازم، گدائے کوئے جانا
مہر و ماں کیا جانے مرتبہ محمد کا، عرش پہ چمکتا ہے نقش پا محمد کا، آفتاب کا مرکز مہتاب کا محور، خاک پا محمد کی نقش پا محمد کا۔ ناظرین، اسلام کے پیغام حقیقی کو دنیا میں عام کرنے میں صوفیہ اکرام، ولی اللہ اور علماء اکرام نے جو کلیدی کردار ادا کیا ہے وہ بے نظیر ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نظام کو اور مضبوط کیا جائے تاکہ خانقاہوں کے ذریعے پھیلائے جا رہے اسلام کے پیغام محبت کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچایا جا سکے۔ ناظرین، نیوز 18 اردو کا یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔